and welcome to another podcast of the Voice of Home Economist. Today I have a very special guest, the Assistant Professor of Human Development and Family Studies, her expertise in human education psychology. Now welcome her. Assalamu alaikum ma'am. Walaikum salam. How are you? I'm good. How are you? I'm good as well. Now today our topic is navigating the gap between workplace and classroom. How a student would gonna transform and deform into a workplace. So let us know about something. Basically, when the students get into the workplace right after graduating, they are used to, I would say, the situations or the routines of a college. कॉलेज में जिस वक्त आप हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर कमिंग फॉर द क्लास ओनली, जिस दिन क्लास है आ रहे हैं उसके टाइमिंग्स को भी जो है ना कुछ फ्लेक्सिबल कई जगहों पे होते हैं. यूनिवर्सिटीज़ के टाइमिंग्स कई दफ़ा फ्लेक्सिबल होते हैं. कॉलेज में आपके क्लासेस के टाइमिंग्स कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं. सो जब वो एक वर्क सिचुएशन में जाते हैं वहाँ की रूटीन के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है. फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 8 to 2 to 9 to 5. Yes. So that is I would say a hectic thing. उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है. फिर जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हैं, now in classrooms you have to give an assignment after a week or 10 days or something. But in workplace you have to give daily performance tasks में होते हैं, and that seems really struggling. आपका वर्क प्लेस कल्चर किस तरह का है उसको अंडरस्टैंड करना, वहाँ क्या कम्युनिकेट हो रहा है, वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हायरार्कीज़ क्या हैं, सीनियर्स जूनियर्स, ऑल ऑफ दैट. सो वो एक्सपीरियंस जब तक उनके पास नहीं होता, इफ़ दे आर स्पेंडिंग देयर स्टूडेंट लाइफ इन देयर क्लासरूम्स ओनली. Yes ma'am. That is one of the biggest challenge they face because they don't know what is going on outside. Obviously about the ethics and the culture of workplace. बिल्कुल. और हर कल्चर हर एरिया का जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे उसका कल्चर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल. How environment differ from academic to workplace? Well, I would say unfortunately the academic culture till now focuses on the results, the outcome. I would say it's like you have to give assignments and you have to focus on your individual tasks, but and the feedback is not given that much. Yes ma'am. That is you just have in the start के इतने quizzes assignments वगैरह हैं या आखिर में हमने ये papers वगैरह देने हैं और उसके हमें marks चाहिए. लेकिन जिस वक्त हम जाते हैं वर्क प्लेस में एक मेन चीज़ जो आती है दैट इज़ इट्स मोस्ट फोकस्ड ऑन आउटकम. फाइनल आपके प्रोडक्ट किस तरीके से है एंड इज़ इट एबल टू ग्रास्प व्हाट इज़ गोइंग ऑन. आपका बीच में अगर कोई प्रोसेस में इश्यूज आ भी गए हैं लेकिन आउटकम जो है वो ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इसी तरीके से फीडबैक काफ़ी मिल रही होती है. टीम डायनामिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने ग्रुप वर्क है आपको दिए, नहीं किसी ने किया, दैट इज़ फाइन कि अच्छा ये वाले काम करते हैं ये वाले नहीं करते. बट इन वर्क एनवायरनमेंट यू कैन नॉट लिव लाइक दैट. यू कैन नॉट डू ऑल द वर्क. Obviously टीम बिल्डिंग होगी क्योंकि अगर आप सारा काम खुद कर लेंगे तो भी आपके ऊपर नेगेटिव है कि आपने ग्रुप से काम नहीं करवाया. और एंड इफ़ यू बिकम अ लेजी पार्टनर तो फिर भी अगेन आपके उस पर है. तो वो टीम डायनामिक्स बहुत एक जो है ना वो ड्रास्टिकली आई वुड से डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द academic place. Yes ma'am. Ma'am, would you like to explain a little bit to our audience what attitude and what kind of behavior is necessary at workplace and which also differ from the academic level? In the workplace you are continuously judged how you behave. Yes ma'am. How you are saying something, if you are communicating one thing or not, and how you are, I would say, interacting with your colleagues, yes, with your seniors, with your juniors. You are scrutinized each and every moment. When you are a student, you can fit into any kind of category. You can be a popular student, you can be popular among teachers, you can be popular among students, or you can be an invisible student.
neglect students. There are a number of students who can stay invisible throughout their academic career, yes. but in professional setting you cannot do that. You have to communicate. और बच्चों को असल मसला फिर वहाँ पे आता है. पॉपुलर स्टूडेंट्स का जो स्ट्रगल है वो ये है कि दे डोंट नो कि अच्छा अगर हम स्टूडेंट्स के साथ पॉपुलर थे तो हमने सीनियर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है. अगर कोई टीचर्स के साथ पॉपुलर था तो उसने अपने जूनियर्स के साथ और अपने कोलीग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, सो दैट एक बैलेंस क्रिएट हो. So it requires a more professionalism and seriousness toward your career as well. Yeah, effective communication, right communication with the right person. That is, I would say. Ma'am, what kind of skills are necessary when we are entering into our professional career compared to college or university? सबसे पहले जिस चीज़ पे मैं करूँगी फोकस, that is communication skill. You should be able to communicate what you are doing, what you want, even what you can't understand. You have to ask for it. हम students में लाइफ में जिस वक्त होते हैं तो ओके अच्छा नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो. We don't ask questions at all. You don't ask. तो वो जो है वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स है. सबसे पहले आपने जो काम कर भी लिया है एंड यू आर लाइक अच्छा अगला खुद ही देख लेगा और नंबर दे देगा, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा. अगर आप नहीं बताएंगे कोई और क्रेडिट भी ले लेगा. सो यू हैव टू बी वोकल अबाउट दैट. आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है. हमारी थ्रू आउट ट्रेनिंग एक एस्केपिस्ट मोड पे होती है. वी ट्राई टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स, वी डोंट गेट इन टू डाइव इन टू द प्रॉब्लम्स. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है. अडेप्ट कैसे करना है इन्वायरमेंट के साथ. इन्वायरमेंट आपका जिस तरह का चेंज हो रहा है, उसका कल्चर जो है, आपको हो सकता है अपने ड्रेस को मॉडिफाई करना पड़े, हो सकता है आपको अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करना पड़े, लुक्स को, बिहेवियर को, ईच एंड एवरीथिंग आपको मॉडिफाई. आपका ईटिंग पैटर्न हो सकता है मॉडिफाई हो कि दोपहर को खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, चाय इस टाइम पे पी रहे हैं या नहीं पी रहे. सो वो सारी अडेप्टेबिलिटी. एंड इफ़ यू बिकम रिजल्ट नहीं मैं तो ऐसे ही करती हूँ, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड. टीम वर्क करना, टीम बिल्डिंग जो है ना वो स्टार्ट से ही आपको ग्रुप में काम करना आता है तो दैट इज़ अ बेटर थिंग. एंड अपने टाइम कैसे मैनेज करना है. डेडलाइंस. सो वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ ही है. Another question is how to get expertise in your particular career and to not distract from your own pathway, to be more experienced. In a new career, you have to think what actually the career you are opting for. You cannot drastically jump into completely another one. कुछ ना कुछ ट्रेल होती है, आपका इंटरेस्ट होता है, कुछ चीज़ें आपके एकेडमिक्स जो हैं उन्होंने गाइड की हुई होती हैं जिसकी वजह से आप एक नए जगह पे जा रहे हैं. बट अगेन आप किसी भी सिचुएशन में जाएं आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ तो नहीं मिलेगी. सो एक कम्प्लीटली नया भी है तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी, ये स्किल्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपको करेंगी. और फिर आप कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हैं. Because I have seen many students struggling in their career, doing BS in psychology and still doing job in a bank for their salaries to have an income. Well, if that is a bank job, they will be mostly in public dealing. So psychology would help in that. They would be in HR related, the psychology would help them. I have seen a number of students who are, for example, might be HTFS students doing, opening their brands, fashion brands. But the thing is, the base is there. Something is there. Interest भी उनका है और प्लस एक उनकी कुछ ना कुछ बेस स्टडी है. एंड आई थिंक कि हम इस वक्त जो करंट पॉलिसी है, आई वुड अप्रिशिएट दैट. इसमें ब्रेथ ऑफ एजुकेशन को काफ़ी किया गया है. दैट यू शुड रीड, you should learn all kind of things. More. आपने सोशल साइंसेस भी पढ़नी है, आपने नेचुरल साइंसेस भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए. और अगर हम वर्क प्लेस पे देखें, वर्क प्लेस पे मेनली इट इज़ सेड दैट एटीट्यूड मैटर्स मोस्ट. स्किल्स आप लर्न कर लेते हैं. सो अगर आपके पास बेसिक लिटरेसी है, आपकी बेसिक डिजिटल लिटरेसी आपको है, आपको कम्युनिकेट करना आता है, तो आपके पास बिल्कुल बेसिक फाउंडेशनल टेक्निकल स्किल्स हैं, तो आप कुछ भी सीख सकते हो. डेफिनेटली नॉट इनटू आप इंजीनियरिंग की साइड पे या डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन उसके अलावा कोई भी फील्ड है, यू कैन, ऑल द डिग्रीज प्रिपेयर यू फॉर दैट. So the conclusion is you can
have some skills without having any professional career, or you can earn something without any professional career. So ma'am, my next question is how social networking impact this transition from classroom to workplace? I think social networking is very important. Networking with your seniors, alumni, the professionals in the field, your mentors. आप जब इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा व्हाट दे आर डूइंग. फॉर एग्जांपल अगर आप लुमिनाइज से कर रहे हैं, देन यू गेट टू नो कि हमारी फील्ड में ये यहाँ से ग्रेजुएट करके गए हैं तो क्या क्या किया है, एंड व्हाट वाज द स्टेप्स, व्हाट वर द प्रोसेस टू दैट. क्या इन्होंने फर्दर कुछ किया है, कुछ ट्रेनिंग्स ली हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओपन है हमारे लिए. उसके अलावा आप जर्नली प्रोफेशनल्स के साथ जब नेटवर्किंग करते हो, यू एक्सप्लोर अ लॉट. वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड हाउ यू कनेक्ट विद देम. उनमें ऐसी क्या स्किल्स थी, एंड व्हाट यू रियलाइज विद दैट नेटवर्किंग इज़ कि उनमें कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं थी. उनके अंदर यही जर्नल स्किल्स थी. Like they were highly motivated, they were hardworking, they were ready to learn. They were ready to learn, unlearn and relearn. And that is a thing जो कि बहुत important है. So जब आप ये realize करते हैं कि अच्छा this is something वो मैं भी develop कर सकती हूँ, you feel more motivated, और फिर आपको एक guidelines, mentors भी मिलने शुरू हो जाते हैं. Obviously you experience from their mistakes to avoid those when they come in your way as well. That is also there. Okay, ma'am. Next question is how would you address the gap between academic knowledge and implementing it into the real world? I think जितना आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं उतना ये गैप मिनिमाइज होता है. एंड आई वुड से टू स्टूडेंट्स दैट प्लीज लिसन टू द टीचर्स, and they do give in the I would say teasers during their lectures. सजेशंस वो साथ साथ दे रही होती हैं, उनके लेक्चर्स में छुपे हुए होते हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, और आप जिस वक्त बाहर जाएंगे फील्ड में तो वो कैसे इंपॉर्टेंट होगा. आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो असाइनमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने नंबर लेने हैं. उन असाइनमेंट्स में वर्क प्लेस में किस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट, अपनी रिपोर्टिंग काम सबमिट कराना है, वो गाइडलाइन है. आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको टीम वर्क सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं. आपके ईच एंड एवरी टास्क में आप एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़रूर पार्टिसिपेट करें. जितना आप एक्स्ट्रा करिकुलर में करेंगे आपको अडेप्टेबिलिटी सीखेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे. डेली बेसिस पे बहुत से इश्यूज आ रहे हैं. उसके अलावा आपके लिंकेजेस अगर डेवलप हो रहे हैं ड्यूरिंग योर स्टडी, आप एक्सप्लोर करना, आप रिसर्च करें क्या हो रहा है दुनिया में. डू गो फॉर इंटर्नशिप्स to get connected. Not only the I would say regular compulsory internships but volunteer internships as well. That is very important. Ma'am, tell about culture, I would say, and medium of workplace as compared to classroom. Culture is, I would say, culture varies from organization to organization. Like we are an Asian country. Not in the sense of Asian countries, but in the sense कि कुछ जो है कल्चर्स ज़्यादा, कुछ इन्वायरमेंट्स या कुछ वर्क प्लेसेस ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, कुछ ज़्यादा इनफॉर्मल होते हैं. यू नीड टू गेट इनटू दैट टू आइडेंटिफाई. एशियन और वेस्टर्न का भी फ़र्क आ जाता है, बट वो आपके अपने ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है. Thank you to our viewers for watching this. Hope you like it. Please add some comments if you want any other career counseling from Sara or any other teacher. Let us know in the comment, and don't forget to subscribe our YouTube channel.